Hello everyone, my name is Akriti Sharma and I am your English teacher for CBSE Class 12 Term 2, and I've been trying to post these videos on the Term 2 syllabus, and right now we are doing the Rat Trap from the Flamingo book. It's a story and it's a very long story actually. So I have already posted videos about the author Selma Lagerlof and the summary, and three videos with the detailed explanation of the story. We've already done 3 and we are going to do 6. And I'm going to cover all the question answers given as think as you read, understanding the text, talking about the text, everything as we move on. So I've already posted these videos. So do check, and so that you can understand this one. Otherwise you won't be able to understand this. And before starting the video, let me tell you कि story कहाँ तक पहुँची है. And the story has reached the point where the peddler is lying on the block of pig iron near the furnace in the forge, and iron master वापस जा चुका है. अब उसकी लड़की आई है, और that is Edla Wilmanson, the daughter of the iron master, and she's come to persuade the peddler to go to her manor house, but the peddler is denying. वो अभी आगे आएगा, but वो आती है and she sees the peddler lying on the floor and with a hat on his eyes. So as she takes off the hat and calls to him, he gets up frightened because he's not used to sleeping in a secure place. तो वो बहुत ही कंट्रोल तरीके से सोता है, बोलते हैं ना चिड़िया की नींद, तो वो ऐसे सोता है क्योंकि उसको लगता है, क्योंकि ही स्लीप्स ऑन द फुटपाथ्स ऑब्वियसली, तो उसको लगता है कि कोई आ ना जाए या कोई आके मेरे मेरे पैसे ना ले जाए, मेरे रैट ट्रैप्स ना ले जाए, वट एवर. तो ही स्लीप्स वेरी विजिलेंटली. तो अभी वो आई है एंड ही इज वोकन अप विद अ फ्राइट. नाउ लेट्स गेट अहेड विद द वीडियो. ओके, माय नेम इज एडला विलमैनसन. नाउ हर नेम इज एडला विलमैनसन. इसको विलियमसन कोई नहीं लिखेगा उल्टा. इट्स अ वेरी कॉमन मिस्टेक, सो यू हैव टू be careful. This is Wilmanson, okay, not Williamson. Now, Edla Wilmanson, said the young girl, my father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight. My father came home. The iron master had obviously gone home and sent her because he thought that she has more persuasive powers than he himself. सो उसने अपनी डॉटर को भेजा और उसको यकीन था कि उसकी डॉटर जो है वो उसको कन्विंस कर लेगी आने के लिए. तो उसके फादर ने उसको बताया था दैट वहां पर एक कैप्टन है, क्योंकि उसको ये तो मालूम नहीं है कि ये पेडलर है, बिकॉज द आयरन मास्टर हैज मिस्टेकन हिम टू बी अ हिज ओल्ड आर्मी बडी, जो उसके साथ आर्मी रेजिमेंटल कॉमरेड में काम करता था. उसका रेजिमेंटल कॉमरेड था वो, कॉमराडरी बेसिकली. तो उसने उसको ये लगा कि इसका कैप्टन है. तो वही उसको उसने डॉटर ने बताया कि वहां पर एक कैप्टन है एंड ही वांट्स टू स्लीप इन द फोर्ज टुनाइट, एंड आई हैव इनवाइटेड हिम टू कम टू माय प्लेस, टू आवर हाउस, बट ही इज नॉट willing to. So you go and convince him so that he comes to a house. And then I asked permission to come and bring you home to us. तो फिर मैंने बोला कि मैं जाके लेके आती हूँ. I'm so sorry, Captain, that you are having such a hard time. Now Edla was very compassionate and kind. एंड वो बहुत अंडरस्टैंडिंग थी. तो उसने देखा जब उस आदमी को, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर ही वॉज अ कैप्टन और अ लेफ्टिनेंट और अ बिग बिजनेसमैन इन हिज टाइम्स, या फिर एक बहुत छोटा सा पेडलर, इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट ही वॉज, उसको जो सामने दिखाई दे रहा था, ही वॉज वेरी काइंड एंड सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हिज कंडीशन इन द प्रेजेंट. तो उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कौन है, बिकॉज टू हिम ही वॉज अ मैन एंड ही वॉज हैविंग अ hard time. Life had been very hard on him, so he was not happy. He was ragged all over, and he was very hungry and reduced to skin and bones. So all these conditions, all that she saw, made her sympathetic towards him, and also empathetic. You can say both sympathetic and empathetic. Now she looked at him compassionately, kindly, दया के भाव के साथ, with her heavy eyes, sympathetically भी हो सकता है, with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. तो अब जब उसने उसको देखा और उसने बोला, I'm so sorry that life has been so hard on you,
but she noticed something on her face. Now, Edla here, though she's younger than the Iron Master, she's her daughter, his daughter, but then she is has a better understanding of human beings. She is very good at judging people. उसने उसकी चेहरा देख के समझ लिया that he is afraid. वो डरा हुआ है. Either he has stolen something or else he has escaped from jail. या तो वो कुछ चुरा के आया है या फिर वो जेल से भाग के आया है. She thought and added quickly, "You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came." And added quickly. और जैसे ही उसने वो देखा उसने तुरंत बोला, बिकॉज शी वॉन्टेड टू कन्विंस हिम, उसने तुरंत बोला कि डोंट वरी, एज यू वॉक इन द मैनर हाउस, द मैनर हाउस इज अ फ्री मैन. अपनी विल से आप जा रहे हो, अपनी मर्जी से आप जा रहे हो. वी आर नॉट फोर्सिंग यू इन टू आवर हाउस. आप अपनी मर्जी से जैसे जा रहे हो, आप अपनी मर्जी से ही वहां से जा सकते हो. यू कैन लीव द हाउस विद योर ओन विल. जब आपका मन करे अब तब वहां से जा सकते हो. नो बडी इज गोइंग टू captivate you. Nobody is going to make like a trap, that the manor house a trap for you. She wanted to convince him क्योंकि उसे लगा कि इसको कुछ ना कुछ चिंता है, इसको डर है कहीं से पकड़े जाने का या किसी पनिशमेंट का. तो उसने तुरंत उसको वो करने के लिए, परसुएड करने के लिए उसने उसको ये बोला कि चिंता मत करो, आप जैसे जा रहे हो फ्री मैन की तरह, वैसे ही जब आपका मन करे तो आप हमारे घर से जा सकते हो. सो दिस वॉज वन थिंग जो उस पेडलर के अंदर एक कॉन्फिडेंस आया एडला के उसको लेके, इनविटेशन को लेके. ठीक है, अगर मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं तो मैं फंसूंगा नहीं. तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उसके अंदर आया. ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव. नाउ एडला, उसने उसको रिक्वेस्ट किया कि आप सिर्फ क्रिसमस ईव के दिन हमारे पास रुके. नाउ एज आई टोल्ड यू, द स्टोरी इज बेस्ड on the night of 23rd of December. अभी ये जो रात चल रही है, जो ये पेडलर सो रहा है, this is 23rd of December. अब अगले दिन क्या होगा? 24th of December is the Christmas Eve. तो वो कह रही है बस एक रात के लिए आप हमारे साथ रुके, because she was a girl who was very grateful for what she had, and whatever she had she wanted to share with people who did not have it, with very poor people and less privileged people of the society. So she felt that burden of sharing. And obviously, as we know, the spirit of Christmas is sharing and giving. So she wanted to keep up the spirit of Christmas and she was very lonely. ये आगे चैप्टर में आएगा, क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि लोनली कौन कौन था. तो सारे कैरेक्टर्स लोनली थे. इवन एडला एंड हर फादर, दे बोथ वर लोनली इन द मैनर. इट वॉज अ बिग हाउस. मैनर क्या होता है? मैनर इज अ हाउस जिसके चारों तरफ बहुत ग्रीनरी होती है, बहुत एरिया होता है लैंड का. तो दैट इज अ मैनर. तो वो जो था वो अकेले रहते थे वहां पे एंड दे वर वेरी लोनली. तो अभी इसमें यही दिखाया है कि वो इतनी लोनली थी, वो चाहती थी कि कभी तो क्रिसमस पे हमारे घर पे कोई आए. जैसे हमको लगता है ना, व्हेन देयर आर फेस्टिवल्स, जैसे होली होता है, दिवाली होता है, ऑल ऑफ अस वांट टू गैदर एंड हैव फन. सो इवन शी फेल्ट दैट नीड to get somebody into the house apart from her father, जिसके साथ वो क्रिसमस बांट सकती थी. एंड शी वॉज ऑफ द ओपिनियन कि ये एक आदमी है और इतना ये लाइफ हैज बीन सो हार्ड ऑन हिम एंड ही इज सो अंडर प्रिविलेज. सो आई वॉन्ट टू मेक वन डे इन द एंटायर ईयर वेरी स्पेशल फॉर हिम. कम से कम एक क्रिसमस तो ऐसा हो जो मैं इसके लिए स्पेशल बना पाऊँ. रिगार्डिंग फूड, क्लोथ्स and all the festivities of Christmas she wanted to share with him because she felt lonely with her father. She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. अब उसको क्या हुआ? उसको कॉन्फिडेंस आया पेडलर को, क्योंकि उसने बहुत फ्रेंडली मैनर में बोला था. ये बात बहुत प्यार से और बहुत काइंडली बोली थी कि आप हमारे साथ चलो, एक क्रिसमस ईव के लिए हमारे साथ चलो. So he felt touched. It would never have occurred to me that you would bother with me yourself. आप खुद अपने आप आओगे, मेरे लिए इतने पेन्स लोगे. And because उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक इतने अच्छे परिवार की लड़की and financially so strong, and she would come all the way from her manor to the forge to invite him, to come to him, to invite him like a man of his personality, a man of his
economic status to come to her house. Miss, he said, I will come at once. मैं अभी चलूंगा आपके साथ. He was so convinced and touched. एक तो उसके पास सेफ्टी आ गई थी क्योंकि उसने कहा था कि आप जैसे चाहो जब चाहो जा सकते हो, तो वो सेफ्टी उसको मिल गई थी और उसको कॉन्फिडेंस आ गया था क्योंकि उसने बोला था कि बस एक रात के लिए रुक जाओ ना. He accepted the fur coat. Fur coat कौन सा कोट? जो कि उसका वैले लेके आया था अपने हाथ पे डाल के. Which the valet handed him with a deep bow. उसने bow के साथ जो servant था उसने कोट उसको दिया पेडलर को. Threw it over his rags. उसने उसको उड़ा दिया कोट को. And followed the young lady out to the carriage. और जो पेडलर था उसने वो जो एडला थी उसके पीछे पीछे कैरिज तक गया. Without granting the astonished blacksmith so much as a glance. उसने जो एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ्स थे, क्योंकि वो एस्टोनिश्ड खड़े हुए थे वहां पे, क्यों? क्योंकि जिस पेडलर को उन्होंने एक शब्द बोलने लायक भी नहीं समझा था, दे डिड नॉट ऑनर हिम इवन विद अ सिंगल वर्ड बिकॉज ही वाज ऑब्वियसली इन हिज ओन रैग्स एंड ही वाज वेरी हंग्री. जो जो उसका हुलिया था वो ऐसा नहीं था कि उसको कुछ इज्जत दी जाए, तो उन्होंने उसको कुछ इज्जत नहीं दी. तो वो चाहता था, वो भी बड़े फक्र से, ही वाज प्राउड कि वहां से निकल गया कि अभी उन्हीं ब्लैकस्मिथ्स के जो मालिक हैं, जो उनकी बेटी आई है उसको लेने के लिए अपने साथ खुद कैरेज लेके कि आप हमारे घर पे चलिए. द सर्वेंट्स वर एस्टोनिश्ड बिकॉज their master's daughter had come to invite the peddler, the same man, herself to her manor. Now, but while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. What are evil forebodings? Evil forebodings are basically कुछ अनहोनी होने की आशंका, a premonition of something bad to happen. That are evil forebodings. Okay. Now, why the devil did I take that fellow's money? भगवान, मैंने क्यों मैंने उस आदमी का पैसा चुराया? That's what he was thinking while he was going to the manor. He thought, now I'm sitting in the trap and will never get out of it. अब वो जा तो अपनी मर्जी से रहा था, but at the same time he thought, why was he going? Because he was touched by the kindness of Edla. But while he was going, this thought process was going in his mind that as it is, I have escaped from this forest. So when I had escaped, I should have slept there in the forge and sneaked away in the morning as soon as possible. और सुबह होते वहां से निकल जाता. But now उसका जो ये भ्रम था ये टूट गया था कि मैंने फॉरेस्ट को चकमा दे दिया, उस ट्रैप को चकमा दे दिया, बिकॉज ही वॉज स्टिल गोइंग टू बी ट्रैप्ड इनटू अनदर ट्रैप, जो कि क्या था? मैनर हाउस था. तो उसको ये लग रहा था, पहले वो सोच चुका था कि ये आर्मी वाले आदमी का घर है, मैं यहाँ से चोरी करके आया हूँ, मैं इसके यहाँ जाऊंगा, इट विल बी वेरी अनसेफ फॉर हिम. तो वो जा तो रहा था बिकॉज ऑफ एडला, बट एट द सेम टाइम ही हैड इविल फोरबोर्डिंग्स इन हिज माइंड. द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस ईव. अगले दिन क्या थी? क्रिसमस ईव, which is 24th December. And when the Iron Master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. अगले दिन क्रिसमस ईव पे जब वो आया, the next day, सुबह की बात है, the next day when he came into the dining room, the Iron Master thought with satisfaction. उसको बड़े satisfaction से, बड़े ही मतलब उसके मन में ये था कि मैंने अपने एक ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड को जो मेरे साथ था, ही वॉज हैविंग सच अ बैड टाइम, हार्ड टाइम, एंड आई हैव गिवन हिम आउट ऑफ माई काइंडनेस, आई हैव गिवन हिम एन अपॉर्चुनिटी टू बी नीट एंड क्लीन, एंड आई विल ऑफर हिम फूड. वो कुछ थोड़ा सा खा पाएगा मेरी वजह से, उसको थोड़ा सा मैं अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल कर पाऊंगा. आई विल बी एबल टू गिव हिम दैट कंफर्ट ऑफ गुड फूड एंड सैनिटाइजेशन, जो उसका ऊपर से नीचे तक जो गंदा हो रहा था, यू नो, सम काइंड ऑफ साफ सफाई. सो दैट इज व्हाट ही मेंट. तो उसके अंदर उस चीज की
सेटिस्फैक्शन थी. Now, whom he had run across so unexpectedly. First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones. वो बोला अपनी डॉटर से that first of all we should see कि थोड़ा सा उसके ऊपर मांस आ जाए, थोड़ी सी उसके ऊपर चर्बी चढ़ जाए. What he meant was because he was a carcass of bones, he wanted him to have some muscle mass, to develop some muscle mass. Who was busy at the table? He said to his daughter who was busy at the table. The daughter of the Iron Master, Edla Wilmanson, was setting the table while he was talking to her. And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps. अब वो ये कह रहे हैं कि पहले तो इसका हुलिया सुधारेंगे थोड़ा सा, है ना, इसको थोड़ा सा हम साफ सफाई वाला थोड़ा सा बनाएंगे और उसको कुछ खाने पीने को देंगे. वी मेक हिम अ लिटिल हेल्दी एंड देन वी विल सी दैट ही हैज समथिंग बेटर टू डू. कुछ उसका व्यवसाय भी सुधारेंगे. वी विल गिव हिम अ बेटर मीन्स ऑफ लिविंग. सो जो उसके रैट ट्रैप्स थे जो वो बनाता था वो भी बेग्ड वायर के पीसेस थे. तो फॉर द आयरन मास्टर इट वॉज मच बिलो द लाइन फॉर एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड टू डू सच थिंग्स. जो उसका मीन्स ऑफ लिविंग था वो काफी डिमीनिंग था आयरन मास्टर के लिए. वो किसी के लिए भी डिमीनिंग था ऑब्वियसली. सो ही वांटेड हिम टू हैव अ बेटर मीन्स ऑफ living. Okay, now it is clear that things have gone down with hill with him as badly as that. Queer का क्या मतलब होता है? Queer means strange. और ये किसने बोला? Said the daughter. तो daughter ने क्या बोला? Let me write here. Now, Edla ने कहा कि it's quite strange that he has had so much of डिफिकल्टीज इन हिज लाइफ कि कहाँ वो ओल्ड आपका रेजिमेंटल कॉमरेड था और कहाँ उसकी ये हालत हो गई. मतलब टू ट्रेवल सच अ वे डाउन द हिल, इट्स क्वाइट स्ट्रेंज. ऐसा कैसे हो गया? नाउ अब ये जो इसका आप देखिए इसका जजमेंट है. शी इज अ मास्टर. वो आदमी की शक्ल देख के बता दिया उसने कि ये अफ्रेड है. एंड शी वॉज अ बेटर जज देन हर फादर. एंड शी वॉज नॉट इम्पल्सिव लाइक द आयरन मास्टर क्योंकि उसने शक्ल उसकी ढंग से देखी भी नहीं थी एंड उसने तुरंत उसको लगा रही ये तो नील्स ओलॉफ है. तो ये बेसिकली एक इम्पल्सिव रिएक्शन था जो कि एडला के साथ नहीं है. लास्ट नाइट I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. कह रही है लास्ट नाइट मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा, उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था जो ये बता सके कि वो एक बार में एक समय पे एक पढ़ा लिखा आदमी था. उसको देख के मुझे बिल्कुल नहीं लगा ऐसा. You must have patience, my little girl. Now the Iron Master said, you must have patience. थोड़ा patience रखो. Said the father. As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. एक बार वो जब clean हो जाएगा और dressed up हो जाएगा तो आप कुछ मतलब उसके अंदर कुछ अलग ही देखोगे. वो अलग ही चीज निकल के आएगी. Iron Master was so very sure. Last night he was naturally embarrassed. लास्ट नाइट वो एम्बेरस था. वो अपने जो उसकी सिचुएशन थी जो उस समय वो उसको लेके एम्बेरस था कि वो हमारे सामने एम्बेरस फील कर रहा था कि मैं ऐसे खराब तरीके का हो रहा हूँ और मैं इनके घर में जाऊंगा. ही वॉज एम्बेरस. द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स. जैसे उसके ट्रैम्प मतलब आवारा, जैसे उसके वो आवारा वाले क्लोथ्स उसके ऊपर से निकलेंगे उन क्लोथ्स के साथ उसके मैनर्स जो है वो आवारगी वाले वो भी निकल जाएंगे. So basically he wanted to say that he will be a changed man with his changed clothes. जो आज तक कभी जीवन में हुआ नहीं है. दुनिया में कभी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ कि आप किसी के कपड़े चेंज करो वो आदमी चेंज हो जाए. जो जैसा है उसकी पर्सनैलिटी जैसी है वो वैसी ही रहती है. पर्सनैलिटीज डोंट चेंज विद क्लोथ्स. ओके. Now, just as he said this, the door opened and the stranger entered. जैसे ही आयरन मास्टर ने ये कहा कि the tramp manners will fall away with the tramp clothes, वैसे ही वो enter हुआ and he was dressed. Now, yes, now he was truly clean and well dressed. अब वो बहुत ही आराम से हाइजीनिक तरीके से उसके कपड़े थे. He was truly clean, बिल्कुल spick and span होके आया था वो and he was well dressed. The valet had bathed him, cut his hair and shaved him. अब वैले ने क्या किया था? उसको नहलाया था, उसके बाल काटे थे और उसको शेव किया था. Moreover, he was dressed in a good looking suit.
of clothes which belonged to the Iron Master. Iron Master का एक good looking suit भी पहना हुआ था उसने. He wore a white shirt and a starched collar and whole shoes. अब उसने क्या किया था? White shirt थी, starched collar, कलफ लगा हुआ collar, and whole shoes. What are whole shoes? Whole shoes are basically shoes जो कि एक सिंगल पीस ऑफ लेदर से बनाए जाते हैं. इनको होल कट शूज भी बोलते हैं, जिसके अंदर पीसेस नहीं होते हैं. देयर आर नो सीम्स, सिलाइयां नहीं होती हैं. एक ही पीस ऑफ लेदर से बनाया जाता है पूरा जूता. सो दे आर होल शूज. बेसिकली द राइटर वांट्स टू से दैट ऑब्वियसली दे वर वेरी एक्सपेंसिव शूज, क्योंकि ये सबको मालूम है एक पीस ऑफ लेदर से बनेगा तो उसमें क्राफ्ट्समैनशिप भी ज्यादा लगेगी और मटेरियल भी वो बिल्कुल ए क्लास होगा ना. But although his guest was now so well groomed, the Iron Master did not seem pleased. अब वो उसका गेस्ट आ गया था. Iron Master was waiting eagerly for him to come, and he wanted to see him कि वो कैसा लगेगा साफ सुथरा होके. वो बहुत अच्छा आया था ग्रूम होके. He was well groomed, but the Iron Master did not seem pleased. But Iron Master खुश नहीं दिख रहा था. अब ये सबको मालूम है कि वो खुश क्यों नहीं दिख रहा था. He looked at him with puckered brow. What is a puckered brow? सिकड़ी हुई brow. ये ऐसे करके देखा उसने. Okay. Brow is eyebrow, obviously. And it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. अब जैसे उसने उसको देखा, उसको ये बात समझ में आ गई कि जो एक अनसर्टेन सा रिफ्लेक्शन आ रहा था फोर्ज की लाइट में से, जो आग की जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट तो नहीं थी जिसमें एकदम क्लीन दिख जाए. तो उसने क्लियर नहीं दिखा उसको. तो जैसे ही उसने उसको देखा, उसने रियलाइज किया मैंने इसको अनसर्टेन रिफ्लेक्शन में देखा था, इसको मैंने थोड़ी प्रॉपर लाइट में नहीं देखा था, तो मैंने इसको पहचानने में गलती कर दी. नाउ बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, अब लेकिन जब वो बिल्कुल सामने एकदम अच्छी लाइट में, डे लाइट में खड़ा था, पहले उसने उसको नाइट में देखा था, वो भी आग की थोड़ी सी रोशनी में जो रिफ्लेक्ट हो रही थी. अब जब उसने उसको बिल्कुल बोलते ना बिल्कुल दिन में चौड़े में देखा, तो फिर क्या हुआ? इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड अक्वेंटेंस. नाउ व्हाट इज एन अक्वेंटेंस? अक्वेंटेंस इज अ नोन टू, जो आप पहले से कोई आपका जान पहचान वाला. नाउ ही कुड नॉट मिस्टेक हिम टू बी हिज ओल्ड अक्वेंटेंस. अब वो अपने उस पुराने जान पहचान वाले के नाम पे उसको नहीं समझ रहा था. उसको समझ में आ गया कि ये वो नहीं है. What does this mean? He thundered. अब वो चिल्लाया एकदम, मतलब he roared actually with anger. What does this mean? The stranger made no attempt to dissimulate. Dissimulate मतलब उसने कोई attempt नहीं किया, उसने कोई भी इतना सा भी कोशिश नहीं करी अपने आप को मतलब कोई explanation देने की या फिर उस चीज से हटने की, उसको दोबारा धोखा देने की कि नहीं मैं वो ही हूं. कुछ भी उसने डिसएग्री करने की कोशिश नहीं करी. He saw at once that the splendor had come to an end. Splendor जो इतना मतलब शान थी जो उसकी पूरी की अरे कैप्टन है, एंड ही गॉट अ कोट ऑफ फर, एंड क्योंकि उसको लगा था कि वो कैप्टन है आयरन मास्टर को, जो उसके ठाट बाट थे सारे वो खत्म हो चुके हैं. वो पेडलर को एक बार में समझ में आ गया, क्योंकि वो समझ गया था कि आयरन मास्टर चिल्लाया है, आयरन मास्टर को उसकी गलती समझ में आ गई है. Okay. Now, this is all for the explanation for today, and I hope you like the video. Do comment and give me your suggestions. What do you want to study more? And I hope you liked it. And thank you very much. Comment, share, and subscribe. Bye.